औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Nazi, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. A lot is happening on the economy, on the capital market side, especially when it comes to conversion of the conventional debt into the Islamic finance. The capital market is getting prepared for that. The players of the market are getting prepared for that. The greatest challenge of today's market happens to be a lower investor base, and there are very few players who are cognizant of this need, and they are really making some good contributions. Considering this and seeing this, we chose to speak with Mr. Ali Farid Khwaja, who happens to be the chairman of K-Trade. He's nowadays in Pakistan. पाकिस्तान से बाहर ही कीप्स ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस. लंदन में इन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, अमेरिका में भी करते रहते हैं, यूए में भी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ करते हैं. एंड द माइंडसेट दैट ही पोजेसेस इज़ कि पाकिस्तान में एफपीआई एफडीआई आनी चाहिए. इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि के ट्रेड का विज़न और मिशन क्या है, इस वक्त की जो गवर्नमेंट है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम है उसकी कारकर्दगी को ये क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. अली फरीद ख्वाजा साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच. इट्स अ pleasure and honor to be in your show, so thank you for coming here. Great sir, great sir. We chose to come here because we wanted to see your facility. बातें हमने बहुत सुनी थी मिलियन इन्वेस्टर बेस पे. द वेरी फ्यू पीपल हु टॉक अबाउट. तो हम चाहेंगे कि नाजरीन को आप बताएं, फिर हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे भी हाउ डज़ योर टीम वर्क्स, व्हाट इज़ दिस विजन एंड मिशन एंड व्हाट आर यू अप टू. जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. सो जिस तरह आपने कहा कि K-Trade इज़ वन ऑफ द टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टॉप ब्रोकरेजेस इन पाकिस्तान. It's the only investment bank which is owned by a UK company, Oxford Frontier Capital. And our mission is to grow Pakistani capital base. And there are two main segments we focus on. One is retail investors. As you rightly said, that we have a mission that we want more than 1 million people to invest in Pakistani stocks. Right now, K-Trade app has more than 1 million downloads and 30,000 active users. The other part of the mission is to connect global capital with Pakistan. So we are local partners of Jefferies, the US Investment Bank, or some of the largest global investment banks invest in Pakistan through us. मगर इनके साथ साथ पाकिस्तान के सारे ही बैंक, सारे एसेट मैनेजर्स, इंश्योरेंस कंपनीज और some of the large high net worth family offices also invest in stocks through K-Trade. But our mission is, we are optimistic about Pakistan, and we think that Pakistani people should have a stake in Pakistani companies. अली फरीद ख्वाजा साहब, अक्सर बात बार बार होती है कि यार ये हम फ्रंटियर में चले गए और अब गोरा नहीं आएगा मार्केट के अंदर. अब पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, इन्वेस्टर्स को देखते हैं, फंड मैनेजर्स के माइंड को रीड करते हैं. व्हाट इज़ योर फील अबाउट, एंड स्पेशली मैंने आपसे एक और भी साइड लाइन में सवाल किया था कि जो फाइनेंस की टीम है उसको आप कैसे देखते हैं, प्राइवेटाइजेशन को आप कैसे देखते हैं. यू सी द माइंडसेट चेंजिंग आउटसाइड पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान. जी बिल्कुल, आपने बड़ा मुश्किल और डीप क्वेश्चन है, तो इसको मैं अगर डिवाइड करूं, क्योंकि प्रोग्राम से पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे और आपने एक बड़ा अहम पॉइंट बोला था विच वाज ट्रस्ट. तो पाकिस्तानी generally foreign investors like Pakistan's story at a high level makes a lot of sense. 250 million log, young population, growing population, typically investors love that, and also cheap valuation. You know, India trades at 22 times earnings. Our stock market is trading at 7 times earnings. So investors generally like these things. और जिस तरह आपको तो डेफिनेटली याद होगा कि 90s में जब पाकिस्तान मार्केट ओपनड अप इनिशियली, पाकिस्तान यूज्ड टू गेट मोर इन्वेस्टमेंट देन इंडिया, एंड जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल इंडिया के साथ और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के साथ वो इतना बड़ा नहीं था. मगर अनफॉर्चुनेटली ओवर टाइम द प्रॉमिस ऑफ पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन रियलाइज, क्योंकि जब भी बूम आता है तो सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैपन्स एंड देन वी गो डाउन. सो इस्टेब्लिशिंग दैट ट्रस्ट इज़ क्रिटिकल. आई थिंक राइट नाउ, आपके सवाल का जो पहलू था कि इस वक्त इन्वेस्टर्स कैसा देख रहे हैं, सो आई थिंक राइट नाउ वी आर अगेन in a time and place where investors have started to recognize the strong positives of Pakistan, and they're willing to engage in Pakistan
एंड दूसरा आपके पार्ट का जो सवाल का जो पार्ट था कि हाउ डू आई रेट द फाइनेंस टीम ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक the reason why foreign investors are now looking at Pakistan is because Pakistan has established credibility over the last 2 years. हम सबको याद है कि in 2023 till the first half of 2023 everybody thought that Pakistan will default. In fact, our stock market was trading at lower multiples than Sri Lanka and Lebanon, countries which had defaulted. So उस वक्त Pakistan government took some very difficult, unprecedented and steps which required a lot of courage and it required sacrifice of the political capital. The fact that they did that and the fact that Pakistan did not default has now led to this credibility which is making people become confident to take a bet on Pakistan. So I am very glad with the performance of the team. I think all of them are serious people, they are working hard, and it starts from the Prime Minister, and I think he's complemented by a great team both in the finance side but also across with SIFC and the support of the army. So I hope they continue to work hard and I hope that they can continue to take difficult decisions. ये बताइए कि FPI और FDI के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि एक टीम है फाइनेंस मिनिस्टर की इज़ वेरी स्पेसिफिक, वेरी टारगेटेड कि इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल करना है, प्राइवेटाइजेशन की 1-2 ट्रांजैक्शंस करनी है ताकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है दुनिया का वो पाकिस्तान की तरफ दोबारा देखने लगे। दूसरी टीम है जो कैपिटल मार्केट पे कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रही है, शमशाद उसको लीड कर रही हैं, और जो कोर्ट का डिसीजन है कि दिसंबर 2027 तक इंटरेस्ट बेयरिंग ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएं बैंकिंग सेक्टर से, तो हम देख रहे हैं कि ट्रिलियंस में नंबर्स अब जा रहे हैं, सुकूक की लिस्टिंग हो रही है। हाउ डू यू सी ट्रांसफॉर्मेशन एट बोथ द एंड्स एंड यू सी इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कमिंग बैक टू पाकिस्तान? जी, आप इनको 4 टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आप जैसे कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर है, द प्लेस वेयर आई सी हिम डिलीवरिंग द मोस्ट इज़ इन टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट विद IMF, विद वर्ल्ड बैंक, ADB, द DF, द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो रही है, पाकिस्तान को ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिल रही है बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और अगेन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव के आज से कुछ साल पहले हमारी रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि हमने जब भी कोई कमिटमेंट करते थे हम उसको ब्रेक करते थे। सो आई थिंक ऑन वन साइड यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम विच इज़ एंगेजिंग विद बैंक्स एंड विद द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। देन यू हैव द टीम डीलिंग विद privatization and the reforms. और उसमें before the show started when we were discussing, both of us had only praises for the current minister of privatization, and we are hopeful that the privatization program of Pakistan, which was stuck for almost more than 20 years, will now get back on trail. And हम एक भी अगर successful case study निकाल लेते हैं उससे, that will get Pakistan back on the credibility which we need. And I think the privatization minister, he's technically sound, he's very hardworking, and he has delivered on so many things that at least we have a lot of high expectations from him. उसके साथ साथ SIFC की पूरी टीम है which is working on things like critical metals, mining, agriculture. There's also a team working on technology, and lastly on digital assets. अब crypto में what Bilal bin Saqib has done amazingly well is put Pakistan on the map. दुनिया में ज़्यादा इतने ज़्यादा सेक्टर्स नहीं है जिसमें पाकिस्तान right at the top of the map है. So we have achieved that. So, and lastly, as you said, on the capital market side, there's also many initiatives and where people are working very hard with a singular agenda to get more traction. I think on the capital market side, I would love more attention of the government. I think you will share that sentiment. So I hope कि उस इनिशिएटिव को ज़्यादा सपोर्ट मिल सके. आई होप कि प्राइवेटाइजेशन के कुछ कंपनीज़ को आप IPO करके मार्केट में लिस्ट करें क्योंकि उससे रिटेल इन्वेस्टर बेस बढ़ती है. एंड आई होप कि जिस तरह पाकिस्तान ने डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो की प्रमोशन, रेगुलेशन की अपनी इंटेंट की प्रमोशन की है, इसी तरह जो पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनीज़ हैं और पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स है, इसको भी गवर्नमेंट अटेंशन दे के प्रमोट करे. तो हमारे पहले सेगमेंट का टाइम चूँकि ख़त्म हो रहा है, तो मैं चाहूँगा आप बहुत शॉर्टली बताएं, FPI पहले पाकिस्तान में आती हुई दिखती है, FDI पहले आती हुई दिखती है. आपकी नज़र में पहली प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन कितना वक्त लेने जा रही है?
जी, आई थिंक दैट जो अगली प्राइवेटाइजेशन है वो PIA की है, एंड आई थिंक इट विल क्लोज इन दिस राउंड विच इज़ हैपनिंग नाउ. द बिड्स विच हैव कम, यू हैव रिसीव्ड 5 बिड्स. आई थिंक पाकिस्तान के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स नो पाकिस्तान बेस्ट. और पर्सनली ऑल्दो हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, मगर जैसे आपको पता है कि सबसे पॉजिटिव इंडिकेटर वो होगा कि पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर पाकिस्तानी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के बारे में सब कुछ पता है. So I am actually pleased that we have 5 bidders this time, and unlike previous round, these are all very credible and the top business groups. So I think I'm very confident that it will be successful. ज़बरदस्त. नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है छोटे से वक्फे का. वक्फे के बाद हम थोड़ी सी मईशत पे बातचीत करेंगे, मगर मैं बताता चलूँ कि इन्वेस्ट पाकिस्तान का एक फ़ोरम है जो पाकिस्तान UAE बिज़नेस काउंसिल के इश्तराक से दुबई में तश्कील पा रहा है, जो कैसर अनीस पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बिज़नेस काउंसिल के प्रेसिडेंट है. वो और SIFC मिलकर अगस्त 2026 में एक मेगा इन्वेस्ट पाकिस्तान समिट ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं दुबई में. अली फ़रीद ख्वाजा ने कमिटमेंट दी है दैट ही इज़ गोइंग टू be part of that, and he would join the team that is developing the roadmap to bring investment to Pakistan. So Nazreen, don't go nowhere. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमने समझा कि पाकिस्तान में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाए और इसकी जो शरह नमू है उसमें भी काफ़ी बेहतरी हो. सो इस सेगमेंट में वी विल ट्राई अंडरस्टैंड एंड हेयर फ्रॉम अली फ़रीद ख्वाजा कि ये ओवरऑल मईशत को कैसे ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, एक्सटर्नल अकाउंट को कैसे देख रहे हैं, और ये जो इंटरेस्ट रेट के बारे में एक्सपेक्टेशंस हैं स्पेशली ब्रोकरेज कम्युनिटी की, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर की कि ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा. तो अली फ़रीद ख्वाजा साहब क्या देखते हैं इन नियर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट कब कम हो रहे हैं, एक्सटर्नल अकाउंट की क्या पोजीशन रहने जा रही है? जी, 2 पहलू है इकोनॉमी को ग्रोथ को देखने के. वन इज़ टैक्टिकल एंड द अदर इज़ स्ट्रेटेजिक. टैक्टिकली पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड फिजिकल स्टेबिलिटी. जैसे हमने बात की कि 2 years ago we were about to default. Because of that our currency was depreciating, our reserves had depleted, and because of that interest rates had gone up to 30%. तो उससे अगर आप कंपेयर करें तो अब 30% से इन्फ्लेशन कम होकर लो सिंगल डिजिट्स पे हैं. इंटरेस्ट रेट जो हैं वो जी कम होकर 11% तक आ गए, एंड दे विल गो डाउन इवन फर्दर. सो द सिक्लिकल रिकवरी हैज़ स्टार्टेड, और इसलिए जो इस साल का GDP ग्रोथ फोरकास्ट भी जो गवर्नमेंट ने दिया है वो 4% से ऊपर का दिया है, जबकि पिछले साल GDP हमारा 2.5% 2.7% से ग्रो हुआ. सो वी आर ऑन द पाथ टू रिकवरी. तो ये टैक्टिकल रिकवरी तो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट, बट द थिंग विच इंटरेस्ट मी मोर is the structural change and the strategic change. The thing which has happened is the most important thing for investing is geopolitics. It has always been important. Geopolitics has always been the most important thing for investment. But now I think everybody knows about it as well. Because of the uncertainty, दुनिया में wars चल रही है, यूक्रेन, रशिया, गाज़ा में जेनोसाइड, ईरान, इसराइल, उससे पहले इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट. In the times of this uncertainty, Pakistan has emerged as a stable, strong country in the region. इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि the world has recognized that Pakistan has a role to play in mediating and the trade and the relationship between the major superpowers, which are China, US, Europe, Middle East. And इसकी वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, और वी आर सीइंग द काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एजेंसीज लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, एंड वी आर सीइंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फ्रॉम ट्रम्प. देखिए ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स है, जिसमें कभी वो कह रहे हैं कि आई एम ऑनर्ड टू मीट द फील्ड मार्शल, कभी वो कह रहे हैं पाकिस्तानीज, वो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तानीज आर स्मार्ट पीपल, आई लाइक पाकिस्तानीज, आई वांट टू डू ट्रेड विद पाकिस्तान. His words matter because उनके words सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आते, वो दुनिया के हर इन्वेस्टर और दुनिया की हर कंपनी सुनती है. जब वो सुनती है और पॉजिटिव लाइट पे पाकिस्तान के बारे में सुन रही है, तो उनको सिग्नल मिल रहा है कि आवर प्रेसिडेंट वांट्स अस टू एंगेज इन पाकिस्तान.
इससे कंपेयर करें कि अभी कुछ साल पहले तक यूएस प्रेसिडेंट हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल भी नहीं करते थे और हम रिक्वेस्ट करते रहते थे कि यार प्लीज़ आप कॉल कर लें जी। तो अब वो हमारे आर्मी चीफ के साथ लंच कर रहे हैं, पब्लिकली बता रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज मैंने तो कभी मेरे ख्याल में अपने करियर में और अपनी ज़िंदगी में ऐसा टाइम नहीं देखा जिस वक्त पाकिस्तान की रीजनल सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा रिकग्नाइज हो रही हो। तो इसका अब रिज़ल्ट आप देखेंगे कि जीसीसी से भी पॉजिटिव इंगेजमेंट होगी। कुवैत ने कब से कितने साल हो गए थे, शायद डेकेड से ऊपर था, कि उन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देते थे, उन्होंने वीज़ा खोल दिए। तो आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आर inshallah going to be the best years for Pakistan's economy and Pakistani people. How do you look at this external account situation? You think things will improve? Yeah, I hope so, and that's where the role of the finance ministry, which you alluded to, becomes really important. So, of course, for long-term growth, we need two things. We need to build up our reserves, foreign reserves, which will give us real stability. And secondly, how will we build up our reserves? We will build up our reserves by increasing exports. Right. तो एक्सपोर्ट्स को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं? एक्सपोर्ट्स में जो गवर्नमेंट का जो प्लान है, जो गवर्नमेंट पब्लिकली बोल रही है, वो ये कह रही है कि हम नए सेक्टर्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, यानी क्रिटिकल मेटल्स, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। तो ये जो 3 सेक्टर्स है, टूरिज़म, तो ये जो 4 सेक्टर्स है, इसके थ्रू दे थिंक दैट वी कैन ग्रो आवर एक्सपोर्ट्स। और साथ साथ जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स है उसमें भी there needs to be some incentives which are given to improve our exports. साथ the last thing which the government must do is a focus on digitalization. Yeah. हम सारे बात करते हैं कि पाकिस्तान में undocumented economy documented economy से बड़ी है। हम सारे ये भी बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। Yes. हम करप्शन की भी कंप्लेन करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बड़ा आसान तरीका है कि आप कैश इकॉनमी को कम करें, आप डिजिटल इकॉनमी को इंक्रीज़ करें। उससे आपकी इकॉनमी में ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिसका मतलब है कि करप्शन कम होगी। उससे आपकी इकॉनमी में एफिशिएंसी आएगी, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ होगा और आपकी इकॉनमी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। सो इट्स अ नो ब्रेनर। सो आई होप दैट द गवर्नमेंट फोकसेस ऑन इट। अंडरस्टूड। देखिए, आपने रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत अच्छी बातचीत की। कैपिटल आई नो कि डेविड वाइट और एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक के लिए आप टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स लिखते हैं, उनको बताते भी हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कैपिटल मार्केट को किस तरह नर्चर किया जाना चाहिए। अगर आप आज की सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास 523 लिस्टेड कंपनीज़ हैं, आउट ऑफ विच 147 आर ऑन द डिफ़ॉल्ट काउंटर। 100 कंपनीज़ का हमारे पास इंडेक्स है। 323 कंपनीज़ में से ईच नाउ एंड देन वी सी बाय बैक्स, राइट, स्टॉक स्प्लिट, वही पुराने कपड़े लिनन है जो धुल रही है स्टॉक मार्केट में। यू सी न्यू कंपनीज कमिंग टू द कैपिटल मार्केट। इन्वेस्टर बेस पे तो यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बट व्हाट रिफॉर्म्स शुड PSX परस्यू के लिस्टिंग बढ़े? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि a healthy, well-functioning capital markets are necessary for sustainable economic growth of any country and certainly Pakistan. आपका ये पॉइंट भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ना सिर्फ इन्वेस्टर्स कम है, कंपनी IPO भी नहीं करती। मेरा अनफॉर्चुनेटली इसमें व्यू ये है कि आई थिंक वी आर ओवर रेगुलेटेड। सो तो आप अनलाइक जो एक मेन स्ट्रीम जो थॉट है वो ये है कि जी पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं है या पाकिस्तानी जो है वो रिस्क नहीं ले सकते, तो वो बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये या फिर उनको ट्रस्ट नहीं है ब्रोकर्स पर। अच्छा, ये तीनों चीज़ें गलत हैं। तो आपने एक मिसाल दी कि के दो सेक्टर्स है जो इन तीनों पॉइंट्स को डिस्प्रूव करते हैं। एक रियल एस्टेट है और दूसरा क्रिप्टो है कि क्रिप्टो में 25 मिलियन पाकिस्तानी इन्वेस्ट करें। इसका मतलब है लोगों को तो इन्वेस्ट करना वो चाहते हैं रिस्की एसेट इन्वेस्ट करना। दूसरा, इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड तक नहीं है, तो इसका मतलब है लोगों को स्कैम से तो डर नहीं है क्योंकि वो तो आपने फाइलों में भी लगा रहे हैं, वो तो रेगुलेटर फाइलों में लगा रहे हैं। और तीसरा, उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे उनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $85 बिलियन पर मंथ है।
इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर है, लोग फाइलों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेकुलेशन पे भी जा रहे हैं और अनप्रोटेक्टेड एसेट्स पे भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि the reason why they're not going to stock market and why Pakistani capital markets are so small and they have been going backwards is because you have over regulated it. So इसका solution बड़ा आसान है कि आप reverse आप उसको make it easy for people to invest, make it easy for people to open accounts, make it easy for companies to go to an IPO. अगर आप सिर्फ स्टार्टअप स्पेस में देखें तो पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के अंदर $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई। वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के थ्रू भी आ सकती थी मगर नहीं आई। स्टॉक मार्केट एक मार्केट है जिसमें इन्वेस्टर और कंपनी आके मैच होती है। अगर आप उधर ताले लगा देंगे और कहेंगे कि एंटर होने से पहले आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी तो वो मार्केट के बाहर मार्केट लगा लेंगे क्योंकि मार्केट हैज़ अ वे ऑफ करेक्टिंग। सो सर्टनली अगर फॉर्मल मार्केट्स को आपने इम्प्रूव करना है तो यू हैव टू गिव देम द सेम प्लेइंग फील्ड एज अदर एसेट क्लासेस। अच्छा, इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है। अगेन मुझे छोटा आपसे सवाल करना होगा एंड आई एक्सपेक्ट अ शॉर्ट आंसर। आप रिफॉर्म्स की बात इकॉनमी के लिए भी करते हैं, फाइनेंस के लिए भी करते हैं, कैपिटल मार्केट के लिए भी आपने एक पिक्चर पेंट की अभी। देखें, सिख यूनिट जहां गवर्नमेंट के हैं वहां स्टॉक एक्सचेंज में भी कोई 147 सिख यूनिट्स हैं, डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ हैं। कांट यू सजेस्ट अ प्लान कि भाई इसको रिवाइव करें या वो डीलिस्ट हो जाएं या फिर वो अपने ऑब्जेक्शंस रिमूव करें और नॉर्मल काउंटर पे आ जाएं? यू थिंक कि इस चीज़ की तरफ भी नज़र होनी चाहिए किसी की? जी एब्सोल्युटली, जिस तरह आपने कहा कि अगर 500 प्लस कंपनीज है 523 में से 147 जी, तो सर्टनली जो कंपनीज डिफ़ॉल्ट लिस्ट पे है उनको या तो आप स्पैक में टर्न कर ले या आप उनको डीलिस्ट करवा दें। इसी तरीके से जो बाकी कंपनीज है उस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ होने, लिक्विडिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए क्योंकि इलिक्विड स्टॉक्स में फॉरेन इन्वेस्टर तो कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के शायद 10 ही स्टॉक्स ऐसे हो जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दैट्स क्रिटिकल। एंड वन मोर थिंग, कुछ लोग कहते हैं कि यार छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कि कोई बैंक की इंटरेस्ट की पेमेंट ड्यू डेट से ज़्यादा हो गई, लिस्टिंग फ़ी 1 साल तक नहीं दी, उसने अगले साल दे दी तो आपने डिफ़ॉल्ट काउंटर पे डाल दिए। इस तरह की चीज़ों को भी यू थिंक देखना चाहिए और इसको इन लाइन विथ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस करने चाहिए, बिकॉज हमारी मार्केट ऑलरेडी बहुत छोटी है, लिस्टिंग का बेस बहुत छोटा है और उसमें 150 का नंबर लुक्स टू बिग। जी, और इसमें जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि हम भूल गए हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक कमर्शियल लिस्टेड कंपनी है, इट्स नॉट अ रेगुलेटेड सरकारी अदारा। सो इट शुड बी द गोल ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टू मेक श्योर दैट द मार्केट इज़ एफिशिएंट, ट्रेडिंग, ग्रोइंग। वही जैसे हमने मिसाल दी कि एक मार्केट है, अगर आप मार्केट में लोगों को आपको चाहिए कि खड़े होकर इनवाइट करो कि आओ इधर आओ, इधर ट्रेड करो, आप नहीं करोगे तो लोगों का नुकसान इतना नहीं होगा क्योंकि लोग बाहर जाके ट्रेड कर लेंगे, क्रिप्टो में कर लेंगे, रियल एस्टेट में कर लेंगे या प्राइवेटली डील्स कर लेंगे। तो नुकसान इदारे PSX का अपना होगा। इसलिए हमें वही कि भूलना नहीं चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर नहीं है, ये एक कमर्शियल एंटिटी है। ज़बरदस्त। देखिए, अली फरीद ने ये कहने की कोशिश की कि देखिए ये एक ख़ुद मुख्तार इदारा है और इसके चलाने वालों को भी इस इदारे की भागदौड़ अपने हाथ में लेनी चाहिए, इनको दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए, इनको बेसिक फ़ैसले ख़ुद करने चाहिए कि यार इस चीज़ के ऊपर डिफ़ॉल्ट काउंटर में कंपनी रह सकती है, इसमें नहीं रह सकती। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि फ़ाइलों की ट्रेडिंग है और एक बराबरी होनी चाहिए, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, क्रिप्टो है या कोई दूसरा सेक्टर है, जितनी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर है उतनी ही यहाँ होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो उसका अंजाम यही होगा, इन्वेस्टर भी नहीं आएगा और ना ही फिर इशूअर आएगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद हम अली फरीद ख्वाजा से समझने की कोशिश करेंगे कि ये बाज़ार की मूवमेंट अगले साल में कैसे देख रहे हैं, इकॉनमी और जो रिफॉर्म्स की पॉलिसी है उसको सामने रखते हुए ये क्या सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर को कि वो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में किस तरह के सेक्टर्स के ऊपर नज़र रखें और मार्केट कैसी रह सकती है। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अली फरीद ख्वाजा को, KSB, के ट्रेड को मार्केट कैसे दिखती है, अगला 1 साल इनको कैसा नज़र आता है, इंडेक्स कहाँ दिखता है,
जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहने जा रही हैं उनको सामने रखते हुए कौन से सेक्टर्स हैं जो इनकी नज़र में बेहतर रह सकते हैं या जिनको अवॉइड करना चाहिए. सो अली फरीद, ओवर टू यू. जी, जिस तरह मैंने कहा कि मेरा तो फेवरेट सेक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, स्पेशली इन जीसीसी एरिया, क्योंकि वहाँ पर डिजिटलाइजेशन हो रही है, ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो रही हैं, एआई की वजह से रिप्लेसमेंट हो रही है कि जितनी भी कंपनीज है दे वांट टू बी एआई रेडी, और उसमें पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ऑफ एक्सपैंडिंग. I also hope that there will be new listings of technology companies on Pakistan Stock Exchange, because I think investors recognize that there's a massive potential in the technology sector, and they're almost hungry for more companies to come and list. So sectorally मेरी सबसे top pick is the tech sector. उसके बाद banking sector will continue to be good. हर emerging markets में जो उनका backbone होती है economy की, वो बैंकिंग सेक्टर होता है. जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, ट्रेड बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो बैंक्स ऑटोमेटिकली बेनिफिट. सो जिस तरह हमने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं, दैट विल हेल्प द बैंकिंग सेक्टर. तीसरा सेक्टर जो है पाकिस्तान में सर्कुलर डेट के प्रॉब्लम को क्योंकि रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह से जो ऑयल एंड गैस और एनर्जी की जो वैल्यू चेन है, जिसमें गैस और ऑयल, उसको द होल वैल्यू चेन विल बेनिफिट. और लास्ट सेक्टर जो है वो टेक से लिंक होता है. टेक्नोलॉजी में ग्लोबली जो सबसे बड़ा थीम है वो एआई है. एआई के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो एक पावर चाहिए और दूसरा डेटा सेंटर्स चाहिए. सो आई थिंक इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, पाकिस्तान के अंदर नए डेटा सेंटर्स लगेंगे और उसके अंदर जो पावर कंपनीज़ की डिमांड बढ़ेगी. सो आई थिंक दोज आर द 4 सेक्टर्स विच आई लाइक एंड माई टीम लाइक्स. जनरली हम वी रोट अ रिपोर्ट, जो आपने एक जिक्र किया कि लंदन में हमने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कराई थी, तो उससे पहले वी रोट अ स्ट्रैटेजी रिपोर्ट सेइंग पाकिस्तान 2.0. So, and in that what we wrote was geopolitics, privatization, reforms, that will bring in foreign investment, or foreign investors will go to stocks which are liquid and sectors which are thematically relevant. And I think those are the 4 sectors which to me look the most promising. Zabardast. So going forward, if you were to suggest risk averse investor कि वो किस तरफ जाए, फिक्स्ड इनकम की तरफ देखे या ना देखे, या फिर ये जो सेक्टर्स आपने बताएं, यू थिंक दीज आर गुड टू गो फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? जी, एक बैलेंस पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम की भी जगह है, एक्विटीज़ की भी जगह है, ऑल्टरनेटिव्स लाइक गोल्ड की भी जगह है, और सर्टनली रियल एस्टेट की भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में एक जगह है. तो जो मिक्स है कि एक्विटीज़ में कितना होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम में कितना होना चाहिए, गोल्ड में कितना होना चाहिए, दिस डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बैकग्राउंड, योर एज. यंग लोगों को ज़्यादा एक्विटीज़ लेनी चाहिए, ओल्ड लोगों को ज़्यादा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. सो इट वेरीज. इट्स डिफ़िकल्ट टू गिव अ आंसर, मगर मुझे लगता है कि इस वक्त गोल्ड में आपकी एलोकेशन अगर नॉर्मली 3% है तो इस वक्त 5% होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अनसर्टेनिटी है ग्लोबली, दिस विल कंटिन्यू. एक्विटीज़ का टाइम, आई थिंक वी शुड इंक्रीज़ आर एलोकेशन टू एक्विटीज़. तो अगर लेट से आपकी फिक्स्ड इनकम में पहले 70 था, एक्विटी में 30 है, तो इस वक्त एक्विटीज़ को आप 50% कर दें और फिक्स्ड इनकम को आप कम करें, क्योंकि राइट नाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस leverage growth which is happening in the stock market. So my preference would be first highest allocation to equities, then fixed income, then gold. Those are my top 3 sector. ज़बरदस्त. अली फरीद, चूँकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि 2-3 चीज़ों पे बड़ा क्विक सा आप जवाब दें, उसके बाद आप अपना एक मैसेज भी रिकॉर्ड कराएं फॉर योर इन्वेस्टर्स, फॉर योर टारगेट ऑडियंस. बट उससे पहले ज़रूर बताएं कि बाय द ईयर एंड क्लोज वेयर डू यू सी द इंडेक्स क्लोजिंग, डॉलर कहाँ दिखता है, पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो आपको कहाँ दिखते हैं, एंड देन मैसेज प्लीज़. जी, सो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट हैज़ डन बेटर देन ऑल द फोरकास्ट. साल की जो फोरकास्ट थी लोगों की वो 130, 120, 140 थी, एंड इट्स ऑलरेडी आई थिंक 125. So we are doing well. I think we will cross 140 and by December. By December. Okay. So I think this, because I think in the second half of the year you will see a lot more foreign investors coming. Right. And I think this will continue in the first half of 2026. जो मुझे सिर्फ जो मेन डर है पाकिस्तान की इकॉनमी पर, वो पाकिस्तान पे नहीं है, मुझे ग्लोबल इकॉनमी पर डर है कि यूएस इकॉनमी अगर एक रिसेशन पे चली जाती है,
इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आएगा, जो कि मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहा था कि गोल्ड में अपनी एलोकेशन बढ़ाए, क्योंकि दैट्स अ हेज अगेंस्ट अ स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमी। उसके साथ साथ आपने सवाल किया कि फॉरेन रिजर्व्स USD, जी फॉरेन रिजर्व्स USD आई थिंक दैट इट विल डिप्रिशिएट बाय अराउंड 5% इश। इस साल थोड़ी सी डिप्रिसिएशन पहले हो चुकी है, क्योंकि इशू खाली रुपए का नहीं है, US डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में डिप्रिशिएट कर रहा है। सो यूरो का अगर आप देखें तो यूरो हैज गेन अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी मोर देन डॉलर्स, द गेन ऑफ डॉलर। सो डॉलर में क्योंकि डॉलर खुद भी वीक हो रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि नेट यू नो मे बी 3 to 5% फ्रॉम हेयर, नॉट मोर देन दैट, स्पेशली इफ वी कंटिन्यू टू गेट दीज foreign flows which we are expecting. So I wouldn't be worried about dollar. वो टाइम गुजर गया जिसमें हमें एक मेंटल डर लगा रहता था कि हर साल 15%, 10%, कभी 20% से डिप्रिसिएशन हो जाएगी। I think the next 12 months will be good for all frontier markets, all emerging markets, including Pakistan. Is there any message that you want to record for your target audience? Gee, they should be positive on Pakistan. They should be positive about the future of their country. They should have belief in that, and they should invest in Pakistan. And if they invest in stocks right now, I think they would be happy with their investment. So that's the brief message. आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अली फरीद ख्वाजा। ही हैपन्स टू बी द चेयरमैन ऑफ द K-Trade, फैंटास्टिक मैन एंड अ ग्रेट पर्सनैलिटी। इनके पास जितनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन और इकॉनमी के ऊपर इनकी ग्रिप है, वो उसको सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो ये बातें करते हैं उसकी रोशनी में पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पेंट किया जा सकता है। व्हेन एवर ही इज़ आउटसाइड पाकिस्तान, ही मार्केट्स पाकिस्तान, ही मेक श्योर कि जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन फंड मैनेजर्स हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देखें। ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान में जो ये काम कर रहे हैं वो उससे भी मुख्तलिफ और चैलेंजिंग है, जिस पे बहुत कम लोगों ने फोकस किया, एंड दैट इज़ इंक्रीजिंग द इन्वेस्टर बेस। और उसके लिए बातों से हट के दे हैव प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म, whether funded or not funded, 1 million इन्वेस्टर बेस का नंबर स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से हमेशा बातें हुई हैं, बट एक ब्रोकर का आगे बढ़ना, एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना और इस तरह की सर्विसेज में आगे बढ़ना, दैट इज़ रियली फैंटास्टिक एंड ग्रेट टू हेयर। जो आखिरी चीज़ है इन्होंने नहीं बताई, बट आई नो फ्रॉम माई ओन सोर्सेज, एक टेक कंपनी है जो कि अगस्त में ये लिस्ट करने जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक बड़ा मसला है, वो है रिवाइवल ऑफ द डिफ़ॉल्ट सेगमेंट। उसके ऊपर भी खामोशी से आप काम कर रहे हैं, बिकॉज़ अहमद चुनाई ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि एक सस्टेन्ड प्रोग्राम की ज़रूरत है कि जिसके ज़रिए ये हो कि वन बाय वन वी लुक इनटू अ कंपनी ऑफ अ डिफ़ॉल्ट सेक्टर एंड सी थ्रू कि उसमें क्या मसले हैं, और अगर उसको एक सिक यूनिट से रेगुलर काउंटर के एक्टिव यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसमें लिक्विडिटी लेकर आनी है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लेकर आना है, तो उसके रीजंस टू डिफ़ॉल्ट भी रिमूव किए जाएं, और अगर वो नहीं हो सकते तो वो फिर किसी नई एंटिटी और इशूअर को के हवाले कर दिया जाए, थमा दिया जाए। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद अ कंपनी ज़हूर कॉटन, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी काइंड ऑफ सस्पेंड काउंटर से रेगुलर काउंटर पर आने के बाद अगस्त में उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। इसका फॉलोअप भी लेंगे। और अली फरीद ख्वाजा ने एक और भी चीज़ कमिट की है कि जो मिडल ईस्ट में इन्वेस्ट पाकिस्तान समिट होने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट, और इसके ऊपर भी और मज़ीद चीज़ों के ऊपर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।